او یو الک لپاره د جنۍ نه یا د جنۍ د الک نه څه شي دغه کول چې کوم دي غوښتل چې دي چې دا راکای نو واده به کوم هغه لپاره بالکل لعنت دی هغه جنۍ لهم الک لهم. منګه پښتانه یو او ګټلبا کې اوسو زموږ علاقه چې دا ډیره خاصه علاقه ده او ډیر خنک علاقه ده. آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان، اور ابھی میں ہوں گاندربل ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں میں جس کا نام ہے گٹلی باغ. ارے واہ، کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کھیل رہے ہیں. کیا بنا رہے ہو؟ سبزی. سبزی کیا بنائی؟ یہ آزاد آزاد. لو کھاؤ. لو دوسرے دونوں ہاتھ ایسے رکھو. لے لو. چنا چنا چنا. لو لو لو. اس نے زیادہ ہی کہا. لو آپ. اب یہ جو گاؤں ہے کشمیر میں بہت فیمس ہے کیونکہ اس گاؤں کی جو پاپولیشن ہے آلموسٹ 90% پشتو ہے، یعنی کہ وہ پشتو میں بات کرتے ہیں، اس لیے ان کو پشتو کہا جاتا ہے. چې دای دهیج ورکول بدعت دی او یو الک لپاره د جنۍ نه یا د جنۍ د الک نه څه شي دغه کول چې کوم دي غوښتل چې دي چې دا راکای نو واده به کوم هغه لپاره بالکل لعنت دی هغه جنۍ لهم الک لهم. مذهب یو صاف دغه دی، روشن دغه دی، حقیقت دی. مذهب وی قرآن وی چې فنکحو نکاح کوا ما طاب لکم کوک تعالی پسند دی او دغه الک لهم دا حکم دی جنۍ له حکم دی. یو بل سودا ولې کوي؟ خبردار سودا مه کوئ. د الله په نظام کې د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دي په خوږ مینې سره رشته کوئ بغیر یو بل نه. دا دهیج یا دا لعنت دا ناشور زما خواست پښتنو ته چې پښتانه چې څنګه په اسلام باندې اول چلیدل روان دي دغه شان همیشه تر قائم دائم دنیا پورې قائم دائم اوسئ د خدای په امان. منګه پښتانه یو او ګټلبا کې اوسو زموږ علاقه چې دا ډیره خاصه علاقه ده او ډیر خنک علاقه ده. د زموږ تام پښتانه اوسو او پښتو ژبه زموږ چې دا پورا جموں کشمیر کې مشهور ده. علاقه ګټلی باغ چې دا ډیر مشهور دی، خاص کر دی الله تعالی شکر دی چې دا وایل چې دی وایل پول چې زموږ جوړ شو د دریو کالو پول چې جوړ شو د لپاره زموږ ټورست راځي، ټورست ته پته ولګېدله او نور خلکو ته پته ولګېدله چې دلته پښتانه اوسي. موږ د تمام د جموں کشمیر هندوستان والا خلکو مشکور چې زموږ پښتنو سره مینه او محبت ساتي. اب یہ جو پاپولیشن یہاں پہ ہے یہ پہلے سے نیٹیوز نہیں تھے کشمیر کے. یہ جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے کئی لوگ افغانستان اور پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، اور یہ ابھی کرنٹ بات میں نہیں کر رہی ہوں، ان کی مائیگریشن کو تقریباً 100-150 سال سے زیادہ ہوا ہے. اب ان میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ میکزیمم اگر ہم دیکھیں ان کا جو کلچر ہے انہوں نے پریزرو کر کے رکھا ہے. زیادہ تر اس کلچر میں جو شادیاں ہوتی ہیں یہ اپنے قبیلے میں ہی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک پشتو فیملی اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کی شادی پشتو فیملی میں ہی کرتی ہے. ان کا جو رہن سہن ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے، ان کی شادیاں بہت مختلف ہیں، اور شادی میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ڈاوری کا اس میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈاوری کے نام پہ ایک بھی چیز لڑکی والوں سے نہیں لیتے ہیں. اگر اس گاؤں کی ہم بات کریں تو ایک خاص بات یہ ہے وہ ہے ان کا لینگویج. او دغه الک لهم دا حکم دی جنۍ له حکم دی. یو بل سودا ولې کوي؟ خبردار سودا مه کوئ. د الله په نظام کې د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دي په خوږ مینې سره رشته کوئ بغیر یو بل نه. دا دهیج یا دا لعنت دا ناشور زما خواست پښتنو ته. ان کے چھوٹے بچے جب تک اسکول جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میں یا پھر اردو میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ صرف پشتو لینگویج میں ہی بات کرتے ہیں. آئیے اس گاؤں کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو آپ تک لاتے ہیں اور یہاں پہ کچھ بزرگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں اس گاؤں کی ہسٹوریکل سگنیفیکینس کے بارے میں بتائیں گے.
अब फाइनली हम गुटली बाग पहुंच चुके हैं और यहाँ के सबसे फेमस जो शख्स है वो मेरे साथ है और प्यार से लोग इनको शरीफ लाला बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। बहुत ढूंढते ढूंढते हम फाइनली आप तक पहुंच गए। आपसे जानना चाहूंगी जो पश्तून लोग हैं, पख्तून लोग हैं, उनकी हिस्ट्री पहले मुझे बताएं कि वो ओरिजिनली कहाँ से थे, यहाँ कब माइग्रेट किया और उनका जो कल्चर था, कहा जाता है अभी भी कश्मीर में रह के भी वो अपना कल्चर प्रिजर्व किए हुए हैं। जी, जी। तो क्या कुछ कहेंगे उस पे? तो मैं आपसे ऐसा इस बात पे पूरा बहस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। इन शॉर्ट बताता हूँ मैं आपको कि जिस तरह कोई भी सवाल करता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पश्तू बोलने वाले लोग कहाँ से आए, सही। तो ये लोग मुझे बताए कि पंडित जो कश्मीर में थे वो कहाँ से आए। सुना बेटा, कश्मीर एक डल था, हिस्ट्री है, एक डल पानी से भरा हुआ। कश्मीर भी जब वो डल सूख गया, कहते हैं कश्यप ऋषि ने उसको एक देवता उसने किया, खुदा जाने क्या था डल। हाँ, जब डल यहाँ से फारिग हो गया, फिर ये एक नाला रह गया। नाले में कश्मीरी भी आए और नाले में पंडित, कश्मीरी पंडित भी आए और नाले में पख्तून भी आए। यही बात है। अब किसी को इसका पता ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि पख्तून हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में है। पहले आप लीजिए हमारे राजस्थान इंडिया का, पख्तून वहाँ है। वो लोग बताइए पख्तून कहाँ से आए, कश्मीर पे किया है क्या, ये कहाँ से है? सही। ये कंवल के फूल नहीं थे उग गए कश्मीर में, ये किसी जगह से आए हैं। इंडिया में जब राजस्थान जब जाओगे तो काफी इलाका जो है पश्तू बोलने वाले हिंदू है, सिख है, शादियों में गाना गाते हैं, आपने देखा है हमारे इंडिया में। और ये आप हिमाचल लीजिए, पश्तू बोलने वाले लोग ये गाना गाते हैं, कल्चर उनका ये हमारे पश्तू का है, लेकिन क्या हिंदू है। हमारे साथ उनका तारुफ हुआ है। तो कश्मीर के पठानों के बारे में कहा जाता है, पश्तू बोलने वालों के बारे में कहा कि महाराजा हरि सिंह के वक्त में, महाराजा गुलाब सिंह हरि सिंह जो महाराजाओं का था इस वहाँ दौर, हुकूमत महाराजाओं की, उस वक्त से लोगों ने पहचान लिया कि ये पख्तून है, पश्तू बोले। उससे पहले आया है, एक सर्टिफिकेट है बेटा हमारे पास, 1931 1931 का सर्टिफिकेट है, स्टेट सब्जेक्ट। उसमें क्या लिखा है, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल या श्रीनगर नहीं है, वजीर वजारत अनंतनाग। क्या लिखा है जी, वजीर वजारत अनंतनाग। उस वक्त डिप्टी कमिश्नर के बगैर होता था वजीर कोई होता था, और श्रीनगर में कोई डीसी नहीं था उस वक्त, अनंतनाग में कोई होता था शायद, उसने वो इशू किया है हमारे दादा को। पता चलता है कि 100 साल, किसने कहा 200 साल पुरानी की बात है कि कश्मीर में पश्तू बोलने वाले लोग आबाद है। अब क्या था कि इनका उठना बैठना जो था ये पहाड़ों में था। क्यों पहाड़ों में क्यों था? माल मवेशी इनका गुजारा था, माल मवेशी पालते थे, इसी पे गुजारा करते थे, इसलिए पहाड़ों के दामन में रहते थे कि पहाड़ में चरागाह होते हैं और माल मवेशी के लिए काफी सोर्स होते हैं। कुछ ऐसे इलाके भी है गुलाबाग में हमारे वो पख्तून लोग रहते हैं, वो हबीबुल्लाह खान, अमनुल्लाह खान पठान जो एसपी आईजी था पुलिस का, वो भी पश्तू है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने और इलाकों से और कम्युनिटी से उन्होंने क्या किया, शादियाँ की। बहू जब घर में आई उसने बच्चों से उर्दू में बातें की तो पश्तू बोल गया। इसी तरह हमारे जो ये हाउस बोट में रहते हैं श्रीनगर में, मैं एज पख्तून जरगे का सदर रह चुका हूँ, कन्वीनर के बाद सदर के, आल जम्मू कश्मीर पख्तून जरगे का सदर हूँ। मोहम्मद शरीफ खान चश्ती है मेरा असली नाम। तो मैंने पूरा सर्वे किया है अपने आप को शेड्यूल ट्राइब के लिए। हमने गवर्नमेंट से अप्लाई किया, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी काफ़ी दौड़ की कि हम अकलियत में हैं, ये मराठी में रहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, हमें शेड्यूल ट्राइब दीजिए। जिस तरह बकरवालों को दिया है, पठान ये गुजरों को दिया है, इस तरह
पहाड़ियों को मिला। उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आप सर्वे कीजिए कि कश्मीर में कहाँ कहाँ पश्तो बोलने वाले हैं। गवर्नमेंट ने जब अपना वो किया सर्वे किया तो उनके मुताबिक 22,000 निकले, इसमें से 22,000 डाल लिए इंजन के। और हमारे सर्वे के मुताबिक कम से कम लाख लोग हैं जो कश्मीर में आबाद है पश्तो बोलने वाले। ये डरते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, किसी साहब बेनिफिट लिया है गुजरों से या किसी और कबीले से, तो अपने आप को आप पश्तो नहीं बोलते हैं, वरना 1 लाख लोग हैं J&K में। हाँ, आपके इस जम्मू में उस्ताद माले में जो पश्तो बोलने वाले हैं जम्मू में, और ये कश्तवाड़, भदरवा, बलेस, हमारे अपने यानी उनके साथ रिश्ता भी है। बलेस के कुछ लड़कियां हमारे गुटलीबाग में है। हाँ, डोडा बलेस। जी, डोडा बलेस। और इस तरह पश्तो बोलने वाले लोग हैं, क्या इसे बोलते हैं कि महाराष्ट्र में है। 2 लड़कियां महाराष्ट्र की यहाँ है। दिल्ली में भी तो है, लाजपत नगर दिल्ली में काफी लोग हैं, मुंबई में काफी लोग हैं। ये जो बड़े बड़े खान है, फिल्मी एक्टर है, ये पश्तो बोलने वाले। अब क्या है, आप शर्माते हैं पश्तो बोलने से। सही बात। हाँ, तो दरअसल में ऐसा है कि इनका पूरी हिस्ट्री का किसी को पता नहीं है कि किस सने में आया है। कोई कहता है 100 साल हो गए, किसी के अंदाजे के मुताबिक ये 150 साल है, लेकिन मेरा अंदाजा है जब कश्मीर आबाद हुआ है तब है। क्योंकि मैं पंडित कौन से इस तरह आपसे कहूँ कि जो हमारे कश्मीरी पंडित थे वो कश्मीर में जा रहे थे, मैं उन दिनों पढ़ता था उनके साथ स्कूल में, इकट्ठे स्कूल, नूनर हाई स्कूल। तो उनमें से क्या था कि वो हमारे साथ मिलजुल थे। हम उनसे पूछते थे आप कहाँ से आए हैं। हाँ, कश्मीर तो कश्मीर है, लेकिन पंडित आप कहाँ से है वो उनको भी पता ही नहीं चलता था। बड़े बड़े मास्टर साहिबान से हमने पूछा है, तो बाद में पता चला कि कंदहार, काबुल जो है, वहाँ के बड़े बड़े वो जो मंदिर है वो अभी भी है वहाँ से पंडित लोग आए थे। तो इसी तरह कश्मीर में पख्तूनों का जो है, ये मैं आपसे बताऊं कि 200 साल, किसने कहा 300-400 साल पुरानी तारीख से है। अब आपका है कि उस वक़्त का और आजकल के कल्चर में क्या फर्क है। सही। आपसे यहाँ कर से कहूँ, उस वक़्त का कल्चर बिल्कुल सादा था। एक शलवार, एक कमीज, एक जेंट्स और एक औरत, एक शलवार, एक और ऊपर से दुपट्टा बड़ा होता था। वो शलवार भी औरत का और दुपट्टा यानी आज के 10 मीटर के बराबर हमारे पठानों का, मैं आपसे कहूँ उसमें सारा बदन ढांपा जाता था, पर्दा होता था। सुना बेटा? तो आज तो बुर्का है, बाकी चीजें हैं। उस वक्त तो ये डिपेंड करता था एक कमीज और एक शलवार और ऊपर से बड़ा दुपट्टा, कम से कम वो चादर होती थी 5-6 मीटर की काली, वो भी काला रंग होता था। आज के ज़माने में क्या है कि आप, ये मेरी पोती आपके सामने खड़ी है या किसी को भी आप यहाँ फिलते जलते आप देखोगे, जिस तरह आप है आप इस तरह है, बिल्कुल फर्क नहीं लगता है कि ये पश्तो है या ये कश्मीरी है। वक़्त के साथ साथ सब हालात बदल गए हैं। वक़्त के साथ साथ हमने क्या किया, हमारे पठान लोगों ने, हमारे पश्तो बोलने वालों ने कश्मीरी लड़कियों के साथ शादी किया। हमारे लड़कियों ने कश्मीरी लड़कों को चुना, मोहब्बत से शादी उनके साथ किया। बहुत लड़कियां जो कि कश्मीर में है, पश्तो बोलने वाले पठान लड़कियां, और वो लड़कियां भी हमारे घरों में हमारी बहू बन गई है जो कश्मीरी है। इसी तरह गुजरों के साथ भी हमारा हो गया है रिश्ते में। और जिस तरह बकरवाल से अभी नहीं हुआ है, गुजर और पहाड़ियों के साथ हुआ है। बकरवाल तो आता जाता लोग है, तो उनके साथ अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो भी मिसाल के तौर कश्मीर में रह गए हैं उनके साथ रिश्ता हो गया। इन आपस में शुरू शकर है, खासकर जो हमारे नजदीक में रहने वाले बाबा वाइल के कश्मीरी लोग हैं। ज्यादा अक्सरियत हमारे कश्मीर में जो है वो गुठली बाग में है पश्तूनों की। जिन्हें आपसे मैं कहा, मैंने इसका रिसर्च किया है कि सारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में घूमा हूँ, और एक फोरम हमने बना था पख्तून, ऑल जम्मू कश्मीर पख्तून जरगा, तो उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है। NOC उसकी आई थी, हमारे बहुत कुछ उस पर हमने काम किया, अभी भी चलता है वो। उस हिसाब से जब मैं देखूं तो काफी चेंज आया है। वो
پشتو بولنے والے لوگ نہیں رہے. پشتو تو بولتے ہیں لیکن وہ پرانے جو تھے جو کہ کسی کے دروازے پہ کوئی آتا تھا بغیر دستک وہ اندر نہیں جا سکتا تھا, دستک مارتا تھا کہ اندر اگر مرد ہے تو آئے جائے گا ورنہ کوئی اجازت نہیں ہوتا تھا. آج تو پٹھان گھر میں نہیں ہے, کوئی آئے دستک دے اسے کہتے آج چائے پی لو پانی پی لو, یہ ہے گھر میں نہیں ہے پھر آئے گا. آج کیونکہ آج آہستہ آہستہ علم سیکھا لوگوں نے. اس وقت علم کم بالکل کم تھا. کیوں کم تھا وہ بھی میں آپ سے بتاؤں. میں نونر ہائی اسکول میں پڑھتا, صبح سویرے چائے ایک پیالی یہاں سے پیالہ پی کر یہاں سے میں پیدل, ہم کافی بچے جاتے تھے پیدل نونر ہائی اسکول, 6 کلومیٹر کا سفر, 5 کلومیٹر صبح اور شام پیدل, کوئی گاڑی نہیں تھا. تو ایک لڑکی کہاں جا سکتی تھی اسکول, ہاں. اور جبکہ آہستہ 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 پھر گورنمنٹ نے بھی بہت اہم کام کیا گورنمنٹ کی طرف سے, چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے چاہے وہ یہاں ہماری اپنی گورنمنٹ تھی JNK کی گورنمنٹ. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر ایک گاؤں میں پرائمری اسکول بنا ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہت اہم کارنامہ تھا. ہر ایک گاؤں میں اسکول بنائے, ہر ایک گاؤں میں اسپتال بنائے. اب لڑکیوں نے کیا کیا کہ ہمیں اب اسکول نزدیک ہے کیوں نام پڑے. اب ہماری جو پشتو بولنے والی لڑکی ہے وہ لیکچرر ہے جی, اچھے عہدوں پہ ہے, ماسٹرانی ہے, لیکچرر ہے, کم از کم بینک میں کام کرتی ہے, کافی آگے جا گئی. پہلے کا جو پشتو بولنے والی لڑکی تھی اس کو اس چیزوں کا نہیں تھا کہ اس بیچاری نے پڑھا نہیں تھا. اور پڑھنے کا لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اس وقت پڑھاتے تھے لوگ, لیکن نہیں مجھے بتاؤ میں جاتا تھا, میں تھک کے آتا تھا, ہمارے ساتھ کم از کم 50 وہ میرے جو کلاس فیلو تھے. ایک لڑکی کہاں سے جا سکتی تھی یہاں سے پیدل دنیا. صحیح بات ہے, سوچنے کی بات ہے, 5-6 کلومیٹر صبح ناٹا جوک, شام صبح شام ایک لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے. صحیح. آپ سے میں جاننا چاہوں گی جب پٹھانوں میں شادی ہوتی ہے نا تو کیا جیسے دہیج وغیرہ دیا جاتا ہے تو کیا آپ کی کمیونٹی میں بھی دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے لڑکی والوں سے؟ ہماری کمیونٹی میں اللہ کا فضل ہے, خدا کا فضل ہے کہ وہ دہیج کا جو زہر ہے وہ قصہ ناصور جو ہے وہ آج تک ابھی نہیں ہے. اب کسی جگہ ہم سنتے ہیں کہ دیا ہے لیکن اوپن میں نہیں دے سکتا ہے. چوری اگر دیا, جہیز کو ہم ایک لعنت اور بدعت سمجھتے. اور یہاں تک میری سوچ ہے اگر وہ پشتو بولنے والا پٹھان ہوگا وہ کبھی بھی دہیج کا معاملہ نہیں کرے گا کسی سے, کسی لڑکے سے نہیں کہے گا کہ آپ اتنا دے دو, یا لڑکی کو نہیں کہے گا میں تمہاری لڑکی سے تب شادی کروں گا جب یہ نہیں گاڑی نہیں ملے گی. یہ پٹھان کے لیے ایک کیا شرم کی بات ہے. تو ہم باقی ماندہ قوموں سے بالکل اچھے ہیں. شادی میں ہمارا جو رواج ہے یہ بالکل سادہ ہے. الحمدللہ ہماری لڑکیاں جو ہے تو وہ بغیر ہی بے دریغ کسی جگہ سے شادی اپنے چوائس کے مطابق کرتی ہے. اس کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے وہاں سے. پورے کشمیر میں آپ جاؤ کوئی آپ کو پشتو لڑکا نہیں کہے کہ میں نے لڑکی سے کہا کہ آپ کو یہ دینا ہے دہیج میں, نہیں کچھ نہیں. آج کل تو ہمارے قوم میں اس قوم میں ایسی شادیاں بھی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں, مولانا صاحب کو مفتی صاحب کو بلاتے ہیں, 2 گواہ جاتے ہیں لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے, اور کھجور لے کر سادے حساب سے کیا نکاح باندھتے ہو شادی کے. پھر ولیمہ جو ہے ولیمہ بھی حدود پہ ہے. کچھ اپنے دوست یاروں کو بلائے تھوڑا کرے, پہلے فلانے کو بلائے سارے گاؤں کو, یہ فلانا ایسا نہیں ہے. تو ایسا ایسا لوگوں نے کیا کیا کہ اس پہ کنٹرول حاصل کیا الحمدللہ. باقی ماندہ قوموں سے کنٹرول ہے. ادھر ہمارے کشمیر میں کشمیری جو بابائل میں ایک قوم ہے, شاہ قوم ہے, ان کا ہاں جو رواج ہے شادی کے بارے میں ہم سے بھی بہت اچھا ہے. کشمیری ہے, 1 پیسہ دہیج نہیں, اور 11,000 روپے مہر, بالکل کشمیری ہے. ڈوبری ولیج جس کو کہا جاتا ہے. جی ہم سے بھی بہت اچھے ہیں. تو آج لوگوں کو سمجھ ہے, علم ہے. آج ہے بیٹا کیا علم ہے. پیل مشماتی وابت دعا کی بیل نتوا خدا راشنا. علم کی شمع جب ہے اس کو پتہ لگتا کیا ہے. جو قرآن فرماتا ہے فن کی نکاح کرو ما طاب لکم, جو آپ کو پسند ہے. ہم میں سے پہلے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بیٹے سے کہتے فلانے لڑکی سے آپ کو شادی کرنا ہے. یہ ہمارے پرانوں کا ہے, چھپا کے نہیں رکھوں گا.
लड़की बेचारी चुप होती थी और हमारे दादा जो नाना थे वो कहते थे फलाने लड़की को शादी किया, कुछ नहीं कही, तू रोती क्या करती, लेकिन शादी कर दी। आज नहीं है, आज हम बाज़ाब्ता अपने बच्ची से पूछते हैं, अपने लड़की से पूछते हैं। और तब फिर डायलॉग भी होते थे, पठान बोलता था पठान का वादा है। जी जी जी। आज हम एज कुरान के रूल के मुताबिक कि कुरान फरमाता है अगर आपको जो पसंद है उससे शादी करो। ये लड़के से भी है और लड़की से भी है, और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे जाके अब दहेज का मामला भी इंशाल्लाह नासूर कम हो गया है, और आगे जाकर मैं समझता हूँ कि हम तो पठान पश्तो तो छोड़ो, कश्मीर में और कश्मीरी जो लोग उन्हों में अच्छे उनमें भी अच्छे जवान आए। नौ जनरेशन जो आया है उन्होंने सोचा है कि ये नासूर है, बिदत है, इतना फजूल खर्चा करना या ये मांगना दहेज। तो आहिस्ता आहिस्ता एक ज़माना ऐसा आएगा इंशाल्लाह 40 साल गुजर कर सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ है तोयब खान पठान, जो कि गुटली बाग के रेजिडेंट है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मेरा सवाल आपसे रहेगा गुटली बाग को लेके। गुटली बाग की जो पॉपुलेशन है बहुत अलग है, थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं कि ये जो पॉपुलेशन है ये ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती थी, कब यहाँ पे माइग्रेट हुई और प्रेजेंट सूरत हाल क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे कौम पठानों के बारे में एक स्टोरी बना रहे हो, हमें इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बेसिकली गोटली बाग एक इलाका है जो मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में, ये सामने इलाका जो है गोटली बाग का है। तो ये गोटली बाग के लोग इसमें तकरीबन सिर्फ पठानी रहते हैं। कश्मीरी कुछ घर हैं जिन्होंने जो कश्मीरी है उन्होंने भी पश्तो लैंग्वेज सीखी है, और वो भी पश्तो बोलते हैं कि उनको भी पता नहीं चलता कि ये पठान है या कश्मीरी है। शाह कबीले से है, बाबा वाली जगह का नाम है, और पूरे इलाके का नाम गोटली बाग है, और गोटली बाग में सिर्फ पठान लोग ही रहते हैं। जी, अब ये ओरिजिनली कहाँ से आए ये पठान? हाँ, ये बात सही है कि आप ओरिजिनली हम कहाँ से हैं। कुछ लोग हमारे दादा परदादा जो थे वो कुछ पाकिस्तान से आए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो हमारे अफ़गानिस्तान से हैं। हमारे फादर जो थे वो बेसिकली पाकिस्तान के रहने वाले थे, और मेरे फादर इन लॉ जो थे वो भी पाकिस्तान के रहने वाले थे। दरअसल वो पाकिस्तान से चल कर आए थे देवबंद पढ़ने के लिए, और वहाँ उन्होंने तालीम हासिल के लिए फारिग देवबंद हो गए, फाजिल की उन्होंने, और आलमियत कोर्स भी किया उन्होंने। वहाँ से फारिग देवबंद हो गए, वहाँ से चल कर फिर आ गए वो हमारा कुछ इलाका है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में और जिसका नाम है वंतराग चक वगैरह सती मैदान, वहाँ भी हमारे कुछ पठान रहते हैं। तो वहाँ से चलकर वो आ गए यहाँ रहने के लिए वंतराग में। तो बेसिकली गोटली बाग में पहले से पठान रहते थे। तो मेरे फादर जो थे मौलवी मीर अहमद खान साहब फारिग देवबंद थे, वो रहते थे। जो दोनों भाई जो हाजी मीर आलम और मीर अहमद खान, ये दोनों भाई थे, एक रहते थे वंतराग में। तो मीर आलम साहब ने जो थे वो थोड़े तबीयत से तेज़ थे और अच्छे जाने वाले थे। मेरे फादर जो थे वो शरीफ थे, वो वहीं बैठ गए, और हाजी मीर आलम साहब वहाँ से चलकर उन्होंने हिजरत की, वो आ गए गोटली बाग में बसने के लिए। यहाँ से जब उन्होंने देखा कि यहाँ तकरीबन पठान है, कुछ यूसुफ जैक के है, कुछ खान खेल है, कुछ मदद खेल है, कुछ काफ़ी कबीले के पठान रहते हैं, तो बेसिकली फिर वो यहाँ रहने लगे और उन्होंने यहाँ फिर शादी भी की। दूसरी शादी की, पहले पाकिस्तान की थी और फिर उनमें से कुछ बच्चे हैं वो पाकिस्तान में और बाकी जो है वो यहाँ हम बसने लगे और यहाँ रह रहे हैं गोटली बाग में। जी, अब शादियां जो होती हैं पठानों में वो भी अलग तरह से होती है, और ये भी कहा जाता है कि पठान जब किसी की लड़की के मतलब लड़की वालों के यहाँ जाते हैं तो जनरली जैसे कश्मीरियों में होता है बहुत लेविश तरीके से खाते हैं पीते हैं, तो वो चीजें नहीं होती है पठानों में। तो उसका मतलब क्या वो यहाँ पे भी फॉलो होती है वो चीज़? बेसिकली हमारा पठान कौम का ये रिवाज था, हमारा बिल्कुल डोरी शोरी था, हमारा डोरी हमारे तो थी नहीं, बिल्कुल दहेज वहेज का हमारा था ही नहीं। हम जब पहले शादी करते थे
लड़के वाले पैसे देते थे लड़की वालों को और शादी करवाते थे। तो हमारा बड़ा सीधा साधा खाना होता है, बड़ा सीधा साधा। अब तो चेंजिंग आई है, अब तो काफ़ी चेंजिंग। हमारा सीधा साधा हमारे घरों में अपने तंदूर होते थे, मक्की की रोटी होती थी, हम गाय भैंस वगैरह पालते थे पहले के ज़माने, आज से 30 साल की पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो घर का खाना होता था, अपनी सब्ज़ी होती थी, अपना मक्की की रोटी होती थी, और अपनी ज़मीनों से अपना अनाज निकाल कर खुद खाते थे हम। और हमारा जो कल्चर है, हमने तकरीबन बाहर शादी नहीं की है, हमने आपस में शादी की है। पठानों के मगर बाहर हमने शायद कश्मीर में या पंजाबियों में या गुजरों में हमने शादी नहीं की। हमने इसलिए नहीं की कि हमारी जो लैंग्वेज है ये बरकरार रहे, ये बरकरार है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज तक जो हमारा लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कौम है, इंशाअल्लाह ताला अपने कौम पर, अपने इस पर मुस्तकिम है और हम चल रहे हैं इस वक्त। और हमारी शादियों का मसला ऐसा था कि हम दहेज तो लेते नहीं थे, बिल्कुल टोटली नहीं, महर करते थे। मेरे 3 बहू हैं, तीनों के हमने 11,000 रुपया मैं रखा है, तीनों का। और जहाँ भी जिस मजलिस में या जिस निकाह खानी में मैं जाता हूँ तो मैं 11,000 से ज़्यादा ऊपर महर नहीं रखता हूँ। तो हमारा कल्चर बहुत सीधा साधा से। हाँ, अब कुछ चेंजिंग आ रही है, क्योंकि हमारे बच्चे, पहले हमारे बच्चे जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, बाहर जाने लगे, तो अब उन्होंने थोड़ा सा कल्चर में ये आगे कि उन्होंने शादी कुछ घर हैं या कुछ लड़कियां जो है बाहर से आई हुई है और यहाँ कश्मीरों के साथ शादी की। बाकी हमारा कल्चर है जो पश्तो लैंग्वेज है हमारी, पश्तो ज़बान हमारी, घरों में हमारे बच्चे जितने भी हैं पश्तो बोलते हैं और पश्तो ज़बान में हम करते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे छोटे हैं वो न कश्मीरी जानते हैं, न उर्दू जानते हैं, न और कोई लैंग्वेज, वो सिर्फ मादरी ज़बान हमारी पश्तो है और पश्तो में बात करते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो फिर उनको कश्मीरी सीखते हैं और फिर क्या नाम है इसका उर्दू भी सीखते हैं। फिर पढ़ाई जैसे जैसे होती है वैसे फिर दूसरी लैंग्वेज सीखती है। हमारे कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा है, सीधा साधा है और अपने मस्ती में, अपने हिसाब में हम बिल्कुल फिट है।